So today we are going to learn about the one of the most important topic that we can say the heart and soul of the geography, in which we are going to cover one of the most crucial understanding that describes the pattern and the methodology of studying this specific subject, that how we should study the geography. So in the beginning, geography was not a discipline, although the term geographia was given by the Eratosthenes, that we also know him as a father of geography, one of the father of geography, depending upon the school of thought. Some people consider Hecataeus, that gave the word Hesperidos, that means the oval or description of the earth. That Hecataeus is also known as the father of geography. But in if the question comes that has the both of the option, one is the Eratosthenes and second one is the Hipparchus, that it made us very confusing to select one of the answer. So this basically depending upon the school of thought, that what we should opt according to the exam. So let us understand the trend and how the questions are coming in the examination. So basically they give the book, and we have to select in the option that which scholar or which geographer has given this book name. Secondly, the most important thing that covers, that have the high probability of coming in the examination, is the sequence, or we have to arrange them in the correct order, or in the chronology, we can say. So one by one we are going to understand this unit, and I am going to deliver this lecture in bilingual mode, but most probably I will using the Hindi language to describe this unit. तो हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में आज अध्ययन करना चाहेंगे. तो हम लोग इस चैप्टर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में ज्योग्राफी अपने आप में एक डिसिप्लिन नहीं था. इसको लोग एक अर्थ साइंस के रूप में जानते थे. So basically geography in the beginning is related with the science. So what is the meaning of science? What is the meaning of science? Science क्या होता है? So science is the study that is follows the three principles. The first thing is the observation. The first thing is the observation. सो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग जब देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद हम उसका साथ क्या करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे. ऑब्जर्वेशन देन एक्सपेरिमेंटेशन. सो बेसिकली इफ वी डू द एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग उसको डिफरेंट रिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है उसके ऊपर में. उसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. और थर्ड पॉइंट इज द कंक्लूजन. कंक्लूजन, that observation we also known as the empirical. so किसी चीज को पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद एक निष्कर्ष पे निकलेंगे. और साइंस क्या करता है? साइंस एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, और एक लॉ सीकिंग सब्जेक्ट के रूप में अपने आप को दर्शाना चाहता है. ऑल्दो हमारे जितने भी जोग्राफर्स हम इस यूनिट में पढ़ेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे. जैसे कि होमर, होमर इलियाड एंड ओडेसी नामक बुक लिखे थे, और होमर वाज बेसिकली ए पोएट. सो in his book the Iliad and Odyssey,
different type of the um geographical terms and descriptions was there. So Homer is also known as the father of geography, in which he introduced the literary tradition while studying the geography. So उन्होंने एक लैंग्वेज रूप में ज्योग्राफी को दर्शाने का कोशिश किया है. Second is the Thales of Miletus. So Thales of Miletus tried to introduce the mathematical tradition in the study of geography. तो उन्होंने गणित के रूप में ज्योग्राफी को दर्शाने का कोशिश किया है. Even we can say the father of history, that is the Herodotus. Herodotus is also the father of geography. Couch, he delivered most of the important terms regarding the geography like delta formation, the river Nile, and the wind blowing from the high pressure to the low pressure. Is all we are going to study one after one. So एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले क्या है कि ज्योग्राफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंस. तो हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग जितने भी स्कॉलर थे इसको साइंस के रूप में ही देखना चाह रहे थे. बाद में और अभी के समय में हम लोग इसमें ह्यूमन कंसेप्ट को भी लेके आए, क्योंकि जितने भी एंथ्रोपोजेनिक और ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं वो अपने आप में एक ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म को शेप देते हैं. जैसे कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पेड़ है, वहाँ पर ट्राइबल लोग गए, शिफ्टिंग स्लैश एंड बर्ड फार्मिंग की, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की, और वहाँ का एक टेरेन और एक प्रोफाइल को चेंज कर दिया. So human also plays a very important role while studying the concept of the geography. So geography is basically the relationship between the physical environment and the human, or we can say it is the study of the areal differentiation, that how one pattern is different from the another pattern, or how different places have the similarity or the common things on other place also follows that similarity. So हम लोग क्या करना चाहेंगे, एक एरियल डिफरेंशिएशन में इस तरीके से देखना चाहेंगे, या तो हम लोग उसको एक साइंस के रूप में देखना चाहेंगे, या हम लोग एक इडियोग्राफिक यूनिक अप्रोच में जाना चाहेंगे कि एक रीजन दूसरे रीजन से किस प्रकार से अलग है, या बहुत सारे रीजन का स्टडी किए और स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन पे लेके आए कि हाँ यहाँ का क्लाइमेट क्या ह्यूमिड क्लाइमेट है. तो वो जैसा जैसा पैटर्न फॉलो किया, अगर किसी और जगह पर ऐसा पैटर्न फॉलो करेगा तो हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई यहाँ का भी जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड होगा. तो हम लोग कॉमन थिंग एक लॉ सीकिंग सब्जेक्ट में इसको लेके आना चाह रहे हैं, एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न के साथ कॉमन करना चाह रहे हैं. तो ये हो जाएगा हमारा एक साइंस के रूप में देखना. और अगर एक रीजन दूसरे रीजन से किस प्रकार से अलग है, तो अलग के यूनिक की कैटेगरी के बारे में स्टडी करना चाहेंगे, तो वो एक आर्ट्स का रूप में, एक ह्यूमैनिटीज के रूप में बात करना चाहेगा. और आगे जाके हम देखेंगे इसमें सैफर, एफ के सैफर और हार्टसन का, रिचर्ड हार्टसन का डिस्कशन that describes about all the dualism and dichotomy in the field of the geography. तो सबसे पहले ज्योग्राफी जो थे वो ग्रीक्स लोगों ने, अरब्स, देन ग्रीक्स, रोमन, अरब, चाइनीज, इंडियन स्कॉलर्स, ये सारे ज्योग्राफर्स डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट प्लेसेस के, जिसने अलग अलग रूप से ज्योग्राफी के फील्ड में योगदान दिया है और उसको आगे के रूप में बढ़ाया है. In its present form, geography is concerned with the predictive and speculative analysis apart from the explanation and description. So, अभी क्या है, आज के डेट में हम लोग समझते हैं कि ज्योग्राफी क्या है. ज्योग्राफी में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं, और उसको व्याख्या करने का, उसको वर्णन करने का हम लोग एक सटीक रूप से इसको देख सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट चीज के पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल थॉट. तो ज्योग्राफी एज ए स्पेशल साइंस, स्पेशल मींस फ्रॉम, सो दिस इज, सपोज दिस इज द टेरेन, दिस इज द टेरेन, and from this chronology, from this space, you are going to study this region, then you are going to study this region, then this region is A, this region is B, this region is C. So one after one you are going to study this region and this region. ये तीनों रीजन का आप लोग स्टडी करेंगे, अलग अलग रूप से करेंगे. और हम लोग इसके, तो इस डिफरेंट रीजन में हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि ये रीजन इस तरीके, ये रीजन से किस प्रकार से अलग है, या ये रीजन ए और रीजन सी के बीच में क्या कॉमननेस है, और रीजन ए और रीजन सी का
रीजन बी के साथ क्या कंपेरिजन है, इसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी ए स्पेशल साइंस हैज a long history of development of its thought. Geographical thought is in discipline of geography encompasses the development of the geographic knowledge in particular process, places, time and context. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इसको अलग अलग रूप से वर्णन किया गया, व्याख्या किया गया। द एंशियंट ग्रीक स्कॉलर लेट द फाउंडेशन ऑफ द ज्योग्राफी, जैसे हम लोग बताए थे, ग्रीक होमर, होमर वाज आल्सो ग्रीक। इन द सब्सिक्वेंट टैग आगे चल के द रोमन, द इंडियन, अरब्स, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन ज्योग्राफर कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड इनरिचमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर को आगे बढ़ाने के लिए इसमें और भी एक्सप्लेनेशन को डाल के इसको और आगे के रूप में डेवलपमेंट के तरफ लेके चले ये सारे लोग। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीक्स, ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा। द ग्रीक्स वेर पायनियर्स इन मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो काफ़ी अलग अलग जो नॉलेज की, जो इंफॉर्मेशन की जो संख्या है, उनमें से इनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के इनका उसमें कंट्रीब्यूशन रहा और हमारे जोग्राफिकल फील्ड में भी रहा। देयर पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द ग्रीस। इसको गोल्डन एज ऑफ ग्रीस कहा जाता है। दे आर गिवन द क्रेडिट ऑफ बीइंग द अर्लीस्ट जोग्राफर, और इनको शुरुआती जोग्राफर्स के रूप में भी जाना जाता है। जब फिलोसफिकल एंड लॉजिकल अप्रोच अलोंग विद द डाइवर्सिटी इन द टोपोग्राफी एंड द फिजिकल फीचर ऑफ द ग्रीस गेव इम्पट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ज्योग्राफी। सो हम लोग पहले जैसे बता चुके थे होमर, होमर के बारे में। होमर वाज वेल नोन ग्रीक पोएट, एक कवि थे। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलियड एंड ओडिसी। This long epic poem describes the episodes of the Trojan War and present geographical account of the land and the people located on the margins on the world. वर्ल्ड के अलग अलग मार्जिन में किस प्रकार से वहाँ के लोग, उनका क्या हैबिचुअल है, क्या उन लोगों का कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो ये सब चीज़ के बारे में वो बताना चालू किए। तो इसीलिए इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, होमर। तो वी कैन से हु इज द फर्स्ट फादर ऑफ द ज्योग्राफी, तो होमर कहा जा सकता है। और लिटरेरी ट्रेडिशन इसके अंदर लेके आए थे, है ना। मतलब उसमें कुछ मैथमेटिकल डाटा है, कुछ ऐसा नहीं, वो सारा सिर्फ लैंग्वेज में उतार दिए सब कुछ। ही डिस्क्राइब अर्थ एज ए सर्कुलर वर्ल्ड सराउंडेड बाय ए सिंगल मैसिव ओशन। अच्छा उन्होंने बताया कि अर्थ क्या है, एक सर्कुलर वर्ल्ड है जो कि चारों तरफ से एक बड़ा विशाल समुद्र से घिरा हुआ है। ये कंसीव्ड स्काई टू बी कनकेव, सो कनकेव सरफेस। उन्होंने स्काई को क्या बताया, कनकेव। अब कनकेव क्या होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कनकेव हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो गया तो ये कनकेव हो गया, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो गया तो ये हो गया कनकेव। और सॉरी, ये हो गया आपको कनकेव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है। तो इस प्रकार से स्काई को बताएं, ये इस प्रकार से ये स्काई को बताएं। ये हो गया हमारा अर्थ, क्योंकि ग्रीक लोग का मानना था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कनकेव है। He conceived sky to be the concave surface. He described the four winds coming from the different direction. Boreas जिसको नॉर्थ विंड कहा जाता है, नॉर्टस जिसको साउथ विंड कहा जाता है, यूरस जिसको ईस्ट विंड कहा जाता है, जेफायरस जिसको कि वेस्ट विंड कहा जाता है, जेफायरस वेस्ट विंड। तो ये सब नाम जो है ग्रीक गॉड के ऊपर में दिया गया है। जेफायरस जिसको वेस्ट विंड, है ना, यूरस, यूरस से ईस्ट, ई फॉर यूरस, ई फॉर ईस्ट, ओके। सेकेंड हो गया थेल्स ऑफ, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे थेल्स ऑफ मिलेटस का। तो मिलेटस क्या है, एक जगह है, थेल्स व्यक्ति है। थेल्स वाज ए प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हु लिव्ड इन द 7th सेंचुरी बीसी। तो 7th सेंचुरी बीसी में एक प्रकार की ये थे, प्रैक्टिकल बिजनेसमैन के रूप में थे। ही वाज द फर्स्ट ग्रीक थिंकर, और पहला ग्रीक थिंकर थे, फिलोसफर थे, ट्रैवलर टू डेवलप द सेवरल बेसिक थ्योरम ऑफ जियोमेट्री। और जियोमेट्री की काफ़ी सारा थ्योरम भी तो हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, थ्योरम दिया है।
ही विजुअलाइज अर्थ एज द डिस्क फ्लोइंग इन द वाटर। अब ये क्या बताएं, ये बताएं कि जो अर्थ है एक प्रकार से वाटर है, उसके ऊपर में ये अर्थ जो है इस पर फ्लैट है, ये तैर रहा है उसके ऊपर में। ये बताएं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ एंड लोकेट थिंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के सरफेस में अलग अलग जगह पे क्या क्या थिंग है, कैसे कैसे है, वो सिर्फ बताने का ये कोशिश की। नेक्स्ट, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर वाज ए ग्रीक फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर। तो ये फिलोसोफर भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है, मैथमेटिशियन भी है, जियोग्राफर भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड के लोग जो है इस ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन किए हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, इवन तो पोएट भी। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी, फाउंडर ऑफ द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी के ये जनक भी जाने जाते हैं, फादर भी जाते हैं। ही एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट फिजिक्स। प्राचीन भूगोल के चार एलिमेंट के बारे में इन्होंने व्याख्या कैसे की, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। जैसे हम लोग के वेद में भी है 5 एलिमेंट से बना हुआ है सब कुछ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब जितना भी चीज है। एंड देयर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ। और किस प्रकार से ये पांचों एलिमेंट मिलके ये जो, सॉरी, हम लोग के ग्रह के अंदर में 5 चीजें हैं, इसमें इन्होंने लोग 4 चीज के बारे में बात की, एयर, अर्थ, वाटर, फायर। इनसे किस प्रकार से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। ही कंसिडर्ड अर्थ एज ए सिलिंड्रिकल मास सस्पेंडेड ऑन ए स्फेरिकल यूनिवर्स। तो ये महाशय का कहना था कि यूनिवर्स स्फेरिकल है और अर्थ जो है सिलेंड्रिकल है, जो कि लटका हुआ है इस प्रकार से। ही इंट्रोड्यूस ए बेबीलोनियन इंस्ट्रूमेंट नोन एज द जीनोमॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इससे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। जीनोमॉन, नोमॉन, जी साइलेंट है। नोमॉन इज यूज्ड टू मेजर द वेरिंग पोजीशन ऑफ द सन। अब अलग अलग जो एपरेंट पोजीशन है सन का, उसको ये स्टडी करता है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर ए वर्ल्ड मैप टू स्केल। द मैप वाज सर्कुलर एंड बाउंडेड ऑन द ऑल साइड बाय ओशन। ये मैप कैसा था, सर्कुलर था, चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ था। तो ये बात तो सबका कहना है लगभग। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर ए वर्ल्ड मैप टू स्केल, है ना। तो वर्ल्ड मैप को भी तैयार करने वाले थे पहले पर व्यक्ति थे। द मैप वाज सर्कुलर एंड बाउंडेड ऑन ऑल साइड बाय ओशन रिवर। यूरोप वाज सोन इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अभी इनका कहना था कि यूरोप जो है दुनिया के पूरे दुनिया के केंद्र में है। चलिए आगे पढ़ते हम लोग। हिकैटियस। हिकैटियस द फर्स्ट राइटर ऑफ द ग्रीक प्रोज वाज ए रेसिडेंट ऑफ द मिलेटस। अच्छा, थेल्स ऑफ मिलेटस के बाद ये भी मिलेटस के ही है, मिलेटस जगह है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी का इनको जनक भी कहा जाता है। वैसे सब तो सारा तो ज्योग्राफी के पिता ही है। His major work is the Hesperidos, that means the overall description of the world. Is the first systematic description of the world. Systematic तरीका से इसको वर्ल्ड के बारे में सब कुछ इसके अंदर में व्याख्या किया गया, बताया गया। It includes the 2 books. First is on the Europe, पहला यूरोप में है, and second is on the Asia, that also includes the अफ्रीका। अफ्रीका भी इसमें जुड़ा हुआ था। He assumed Earth to be circular plane. अच्छा, इनका कहना था कि अर्थ सर्कुलर प्लेन की तरह है। अकॉर्डिंग टू हिम ग्रीस इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब इनका कहना था यहाँ पर कि यूरोप सेंटर में है, इनका कहना है कि ग्रीक सेंटर में। सबका अलग अलग मानना है कि ग्रीक सेंटर में। ही हैज ए इंटीमेट नॉलेज अबाउट द लैंड बॉर्डिंग द Mediterranean Sea, Egypt, especially the Nile Valley, was extensively traveled by the Hecataeus, and he was perhaps the first to call this country as gift of the Nile. अच्छा, इसमें लोग हेरोडोटस और इसमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हेरोडोटस भी कुछ सिमिलर प्रकार के थे, लेकिन फर्स्ट अगर बात कर दिए ना फर्स्ट का, तो यहाँ पर जो है हिकेटियस को ही कहा जाएगा। तो यहाँ से भी यूजीसी नेट हम लोग को फंसा सकता है। अब है हेरोडोटस।
Herodotus was the first and the foremost Greek historian, father of history, is regarded as the father of the history who has contributed in the historical geography. He advocated that all history must be treated geographically and all geographically must be treated historically. अब क्या है ना, बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी बात करेगा स्पेस का, हिस्ट्री बात करेगा टाइम का. सो at a given time what was the geographical condition of that region that was happening on that time. So उस समय में क्या उस जगह का ज्योग्राफिकल नेचर था, टेरेन कैसा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, तो इसके बारे में जो बात करेंगे समय समय खाल के. अब कांट का भी यही कहना था, जिस प्रकार से हम लोग लाइक द इफ वी कट द हिस्ट्री टाइम इनटू द सेक्शन, सिमिलरली वी हैव टू कट द स्पेस इनटू द सेक्शन. अगर हम लोग हिस्ट्री को सेक्शन में बांटते हैं, दैट इज द स्पेस, तो हम लोग टाइम को भी सेक्शन में बांटेंगे. ये तो कांट का कहना था. इनका भी यही करना है कुछ इस प्रकार से कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी must be treated historically. He has produced only one work, histories, which is a record of his inquiry, being a investigation of the origin of the Greco-Roman War. इसमें ग्रीको रोमन वार के बारे में व्याख्या किया गया. इमेंस ज्योग्राफिकल एंड इथनोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वहाँ के लोग है ना, इथनोलॉजी मीन्स वहाँ के लोग, कल्चर, ये सब के बारे में उसके अंदर में पूरा तरीका से भरा हुआ है. He accepted the Homeric view of the earth as a flat disc. अब इनका ही मानना है कि पृथ्वी चपटा है, फ्लैट है, over which the sun was believed to travel in the arc of from east to west. और ईस्ट टू वेस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट ये अर्क की तरह है सन, ये पृथ्वी है, अब सन जो अर्क की तरह है. He was the first scholar to divide the world landmass into the three continents, यूरोप, एशिया एंड द लीबिया. इनका कुछ और भी कहना, जैसे कि एयर जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना. डेल्टा के बारे में बताएं, और नाइल रिवर भी गिफ्ट है, तो यही बात तो इनका कॉपी कर लिए होंगे मेरे हिसाब से. हिकेटियस बाबा का इन्होंने कॉपी किया ये डायलॉग. ठीक है, तो आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करेंगे एरिस्टोटल. एरिस्टोटल जिनका गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सॉक्रेट्स, और एरिस्टोटल का जो स्टूडेंट है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सब लोग जानते हैं उसके बारे में. एरिस्टोटल वाज ए रिनोन्ड फिलोसोफर ऑफ हिज एज. ही स्टडीड द ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मतलब एक पैटर्न के रूप में, एक फिक्स तरीका से इनको स्टडी करने का ये लोग. ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ द स्फेरिकल अर्थ, और इन्होंने माना कि पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल की तरह है. एंड ऑल्सो द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन की थ्योरी को भी इन्होंने माना. हाउएवर ही कंसीडर्ड द अर्थ एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. अब इनका मानना था जियोसेंट्रिक व्यू पे, कि भाई साहब अर्थ पूरे वर्ल्ड के, पूरे यूनिवर्स के सेंटर में, और जितने सेलेस्टियल बॉडी है वो अर्थ का चक्कर काट रहा है, ऐसा मानना था इनका. लेकिन हम लोग के जो इंडियन ज्योग्राफर है उनका मानना था हेलियोसेंट्रिक व्यू, मतलब पृथ्वी जो है भूगोल. वैसे तो हम लोग के इंडियन ज्योग्राफर थे वो लोग पहले ही जानते थे कि पृथ्वी गोल है, इन लोग का मानना था कि चपटा है. वैसे एरिस्टोटल ये बात मान गए थे कि पृथ्वी जो है स्फेरिकल है, एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को भी इन्होंने काटा नहीं. He considered the Earth as center of the universe, believed that the stars revolve around it. सारे celestial body है, स्टार है, ये पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं. He divided the Earth into the climatic zone on the basis of different temperature. अलग अलग तापमान के रूप में अलग अलग जगह के लोग इन्होंने उसको कैटेगरी में रूप में अलग किया. He also put forward the idea of the erosive agent that changed the original form of the Earth. और किस प्रकार से डिफरेंट जो एजेंट है, इरोजन है, जो कि ऑप्सितु होता है, हवा या टकराया उसको इरोज करके अपने तरफ से बहा के ले गया, उसके बारे में क्या क्या एजेंट है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा. हिज वर्क इंक्लूड्स द मेट्रोलॉजिका, ये भी इंपॉर्टेंट है बुक का नाम, मेट्रोलॉजिका, इन विच ही डिस्क्राइब द टाइडल मूवमेंट, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ये सारा टाइडल मूवमेंट के बारे में इन्होंने बताया. असर्टेड विंड्स
to play important role in the origin of the tidal wave। और किस प्रकार से पवन जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इनका मन्नत है, तो ग्रेविटी को तो काटे नहीं, लेकिन इनका ये भी मन्नत है कि टाइड्स में जो है विंड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं हमारे फादर ऑफ ज्योग्राफी। वैसे तो हिकेटियस भी होना चाहिए, क्योंकि जेस्पेरिडोस जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है पूरे वर्ल्ड के बारे में। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल ऑफ थॉट की कुछ लोग हिकेटियस मानते हैं, कुछ लोग एराटोस्थेनीज मानते हैं। किसी बुक में फादर ऑफ हिस्ट्री एराटोस्थेनीज को दिया गया है, कहीं पर हिकेटियस को दिया गया है, ये तो कंफ्यूजन ही रहेगा सबके लिए। चलिए, एराटोस्थेनीज वाज ए ग्रीक मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, ये भी मैथमेटिशियन है भाई लोग, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, पोएट, म्यूजिक म्यूजिक पोएट, सब में इनका ज्ञान था। बताइए, ही डेवलप्ड सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ascertained accurate length of the equator using the जीनोमॉन। अच्छा, जीनोमॉन जो एनेक्सिमेंडर के द्वारा दिया गया था, इससे पूरा तरीका से वो इक्वेटर का लेंथ को नाप लिए थे। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ प्लॉटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैप यूजिंग ए ग्रिड सिस्टम लाइक मीन्स इस प्रकार का ग्रिड सिस्टम, इस प्रकार से ये मेजरमेंट ले लिए थे, प्लॉट कर दिए थे पूरा। ही रॉट द बुक ज्योग्राफिका, और ज्योग्राफी क्योंकि इन्होंने नेम दे दिया था इसीलिए लोग इसको मानते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, इन विच ही डिस्क्राइब द इक्यूमेन एंड नॉन इक्यूमेन। तो वैसे तो एरिस्टोटल का भी मानना था इक्यूमेन, सीधे जब भी इक्यूमेन और नॉन इक्यूमेन आ जाए तो समझ लीजिए बात हो रहा है एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म का। जैसे कि टॉरेट जोन है, वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर जंगली लोग रहते हैं, वहाँ पर उन लोग का जो है बिहेवियर एग्रेसिव होगा। जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं वहाँ पे लोग कूल माइंड के होंगे, इस प्रकार से। तो ये इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म है। इन दिस ही एक्सेप्टेड द डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू द यूरोप, एशिया एंड लीबिया, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस 5 क्लाइमेटिक जोन, टॉरेट जोन, 2 टेम्परेट जोन, 1 2 फ्रिजिड जोन। मतलब ये फ्रिजिड मीन्स हो गया तुंद्रा टाइगर वाला रीजन। उसके बाद है पॉलीबियस। सबका क्रोनोलॉजी याद करके रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है। हिकेटियस के बाद है हेरोडोटस, उसके बाद एराटोस्थेनीज है, फिर पॉलीबियस है। पॉलीबियस वाज ए फिजिकल ज्योग्राफर। ही स्टडीड द प्रोसेस ऑफ द इरोजन के बारे में बताएं, हाउ स्ट्रीम ग्रेड देयर वैली, किस प्रकार से जो नदियां हैं, स्ट्रीम है, वो वैली को कट करते इरोजन करते हैं, शेप देते हैं, ये सब के बारे में। हिपार्कस वाज ए ग्रीक एस्ट्रोनॉमर, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है, ज्योग्राफर है। मतलब ये लोग एक फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड में सब काम करते थे। अच्छा है हम ही लोग की तरह। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द टिग्नोमेट्री के फाउंडर हैं। ही इज फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द इक्विनॉक्सेस, फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन कैटलॉग एंड हिज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द साइंटिफिक कार्टोग्राफी। मैप मेकिंग में इसको किस तरीका साइंटिफिक रूप में किया जाए, इसके बारे में सब कुछ इन्होंने बताया। He stressed the importance of the parallels of latitude, meridian of longitude. He invented the instrument known as the astrolabe। ये important है, astrolabe। astrolabe किसने दिया था? हिपार्कस ने। For determining the latitude and longitude। पूछ सकता है what is the functioning of the astrolabe। तो उसमें जब कब काम किया था तो ये बताता था लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, साइंटिफिक तरीके से बताता था, ये इसका काम। He was the first to divide the circle into 360। अच्छा, ये पहले व्यक्ति थे उस सर्किल को 300, ये हो गया पूरा 180, ये हो गया पूरा 180 360 में। He is also credited for the conservation of the 3-dimensional sphere into the 2-dimensional plane। अच्छा, किस प्रकार से ये 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में डाल के, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ये एक प्लेन हो गया। तो ये प्लेन में किस प्रकार से इसको जो है डिस्क्राइब किया, 2 डायमेंशनल प्लेन, एंड डिजाइन ऑर्थोग्राफिक एंड द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन टू अचीव दिस प्रोजेक्शन शो ओनली ए हेमिस्फीयर एंड नॉट होल अर्थ। अच्छा, ये सिर्फ एक प्रकार का, ये पूरा अर्थ है,
ये पूरे सर्किल जो हाफ हेमिस्फीयर को ये शो करता था, ठीक है, प्रोजेक्शन को, पूरे अर्थ को नहीं। उसके बाद है पोसिडोनियस। पोसिडोनियस वाज इंपॉर्टेंट ग्रीक हिस्टोरियन, एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर, टीचर। ही रोट बुक ओशन, दी ओशन। तो दी ओशन किसके थ्रू लिखा गया था? पोसिडोनियस के थ्रू। He made two important contributions out of which one was later proved wrong. इसको एक को दो खोज किए पहले, जिसको जिसमें से एक इनका गलत माना गया, एंड अदरवाइज राइट, दूसरा सही था, बट इट वाज ओवरलुक्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। काफी समय तक इन चीजों को इग्नोर करके चला गया। फर्स्टली ही recalculated the circumference of the earth। पहले क्या किए? circumference of earth को कैलकुलेट किए and arrived at much smaller figure than that of the Eratosthenes। अच्छा, एराटोथेनीस से ये कम संख्या लेके आए थे। He greatly overestimated the west to east direction from the western part of the Europe and eastern extremely of the Achaemenid habitable zone, then thought to be an occupied by India. He therefore said that a ship sailing westward from the European coast of the Atlantic would reach east coast of the India after journeying in search of the India, which finally ended at the eastern coast of America। समझे बात? तो इंडिया को खोज में कहाँ पहुंच गए ये? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। सेकेंडली, पोसिडोनियस contradicted the view of the Aristotle that the equatorial part of the torrid zone was inhabitable because of the heat। और रहने लायक नहीं है टॉरेड जोन, यहाँ पर जंगली लोग रहते हैं, सभी लोग नहीं पाए जाएंगे यहाँ पे। बाद में इसी को अपोज करता है environmental possibilism। He insisted that the area of the high temperature was located near the tropics and the temperate near the equator were much less extreme। उल्टे कह दिए, टेम्परेट रीजन में जो है, टेम्परेट रीजन जो इक्वेटर के नजर में वो कम, less extreme। He pointed out that the overhead sun paused the longer near the tropics and is overhead at the equator for much shorter time। इक्वेटर के ऊपर में बहुत कम समय तक सूर्य का किरण लंबित होता है, 90 डिग्री पर रहता है, और दूसरी जगह पर काफी समय पर होता है। इनका उल्टा कहना था। कंट्रीब्यूशन ऑफ रोमन। अब रोमन आते हैं। The Roman were most practical and philosophical in the outlook। They were primarily concerned with the commercial and administrative problem, plan, military, ये सब चीज में। The knowledge of the geography was necessarily both for the effective administration, है ना, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, व्यापार के लिए ज्योग्राफी का होना बहुत जरूरी है, इसलिए इन्होंने इसको स्टडी करने का इम्पोर्टेंस समझा। रोमन मेड मेजर कंट्रीब्यूशन इन टू द हिस्टोरिकल एंड द रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में काफी महत्वपूर्ण निभाया, जैसे कि स्ट्रैबो 64 BC से 24 AD। Strabo was one of the leading scholar of his time। He is considered the father of the regional geography। Important है as he replaced division based on the natural boundaries। natural boundaries के बारे में इन अलग अलग डिवीजन बताया, like the mountain, river, for less permanent and artificially drawn political units। His most important work is the Geographica। In this he has tried to compile all then knowledge of the mathematical, physical, political। ये बुक जो ज्योग्राफिका है, इसके अंदर में सारा कुछ इन्होंने इन्वॉल्व किया उस समय का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन द फॉर्म ऑफ द जनरल ट्रीटीज। वहाँ के समान लोग जो मानते थे इसके रूप में। ही अदर वर्क इज द हिस्टोरिकल मेमोर। तो आगे देखते हैं हम लोग। He was the first to declare geography as the chronological science। अच्छा, chronology means space, geography क्या है? Science of space। His work is mainly historical, in which he attempts to highlight the relationship between the history and the geography। जैसे कि हेरोडोटस किए, तो भी उनका भी यही मानना था, तरीका से ये भी हिस्ट्री ज्योग्राफी को
रिलेशन में बता रहे हैं, और बिल्कुल बात सही भी है. हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज बेसिकली complementary to each other. In the field of the mathematics, physical geography, his contribution cannot be outstanding. Termed outstanding अतः इनके contribution को outstanding कहा गया. He saw the earth as the oblong and regarded as the island as most northern way of all the known land. Ireland को सबसे दूर का जगह कहा गया. He compiled the large amount of the material to the highlight the changes that have taken place during the changes in the sea level due to the volcanic eruption and the earthquake. अब आते हैं हम लोग टॉलमी के ऊपर में. टॉलमी वाज ए ग्रीको रोमन राइटर, अलेक्जेंड्रिया से थे. नोन एज द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, पोएट, ज्योग्राफर. मतलब लगभग एरेटोथनीज भी सेम चीज है, मैथमेटिशियन भी है, पोएट भी है, सिंगर भी है, सब कुछ है. He was the author of the several scientific treatises. His earliest work was the Almagest. Important है. Syntax is a great contribution to क्लासिकल एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. डील्स विद द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द मोशन ऑफ द सन, मून एंड द प्लैनेट. एक मैथमेटिकल थ्योरी दिए है किस प्रकार से पृथ्वी में, मून में और बाकी प्लैनेट के बीच में जो रोटेशन हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसके ऊपर में पूरा इन्होंने उसको वर्णन किया. His second most important work, the Geography, also known as the Guide to Geography, deals with the theory of the map projection. अब गाइड टू ज्योग्राफी भी दी है टॉलमी. इनमें मैप प्रोजेक्शन के बारे में बात किया गया. इट कंसिस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्लेसेस विच देयर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यही बात है. डिस्क्राइब ब्रीफली ईच कॉन्टिनेंट. इसमें भी लैटिट्यूड का, लॉन्गिट्यूड का गाइड टू ज्योग्राफी में दिया गया है. डिस्क्राइब ब्रीफली ईच कॉन्टिनेंट, कंट्री एंड द ट्राइब के बारे में भी इन्होंने उसमें व्याख्या किया है. He asserted that geography is a science which deals with the art of the map making. इन्होंने कहना था ज्योग्राफी एक प्रकार का साइंस है जो कि मैप मेकिंग के ऊपर में काम करता है. A major contribution to the Ptolemy to the cartography has been the use of the graphical of the latitude, longitude and the mathematical construction of the projection of his map. मैप का प्रोजेक्शन उन्होंने बताया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताया. He also provided the detailed account of the known world. जितना भी उस समय नॉलेज था उनको दुनिया का, जो नोन वर्ल्ड था उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है. ही प्लॉटेड द गैंगेटिक गल्फ, बे ऑफ बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम. अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है. द अदर माइनर वर्क इंक्लूड द ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स मींस द लाइट. 12th चैप्टर, क्लास 12 एनसीईआरटी. एनसीईआरटी फिजिक्स 2 में ऑप्टिक्स चैप्टर है. ऑप्टिक्स वर्ड इनके बारे में काफी अच्छा काम किया. The Terra Biblos, which deals with the reflection, refraction. अच्छा, reflection सबके बारे में बता चुके थे उस समय. किस प्रकार से लाइट एक दूसरे से मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट बेंड कर जाएगा. अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा. डेंसर से रेड में चला तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा. किस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो रहा है, आया, टकराया, चला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ उसके अंदर में पूरा व्याख्या कर चुके हैं. ये the world was a field of the astronomy. He also formulated the concept of the terra australis incognita. ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, terra australis incognita, which declared that the Indian Ocean is a closed sea. इसमें ये बताया गया है कि इंडियन ओशन जो है एक क्लोज्ड सी है. The idea was probably borrowed from the Hipparchus. कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि इन्होंने हिपार्कस का डायलॉग यहाँ पे चिपका दिया है. चलिए, Solinus 2050 AD. Solinus gave a general geographical account for the world. पूरी दुनिया का एक ज्योग्राफिकल वर्णन किया है इन्होंने. He wrote the collective written memorabilium in which he tried to collect the wonderful things. collective rerum memorabilium, क्या क्या है पता नहीं लोग का भाषा. The geographical framework in which they were set, however, he has been described as the plagiarist of the Pliny, wrote the Historia Naturalis and the Pomponius.
अब हम लोग बात करेंगे पोम्पोनियस मेला 335 से 391 AD। Pomponius Mela was the last important geographer and the historian of the time। हिस्टोरियन भी है क्योंकि उस समय तो लोग का मानना ही था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लोग अलग कर नहीं सकते और आज के डेट में भी नहीं अलग कर सकते और ये काफी सत्य बात भी है। He was the last among the ancient to recognize the value of the geography in relation to the history and the defense। अब ये लास्ट रोमन ज्योग्राफर हैं। उसके बाद तो डार्क एज ही शुरू हो जाता है जहाँ पर चर्च डोमिनेट कर जाता है। बहुत सारे हमारे फिजिसिस्ट हैं, स्कॉलर हैं जो साइंटिफिक मेथड को बता रहे हैं तो या फिर एविडेंस दे रहे हैं तो उसको विच क्राफ्ट का नाम देके उनको हैंग कर दिया जा रहा है। चर्च बेसिकली डोमिनेट कर गया है ना, तो डार्क एज है। ही रोट दी कोरोग्राफी एंड कॉस्मोग्राफी इन द लैटिन। अच्छा, लैटिन वर्ड में इन्होंने लिखा। इन हिज बुक ही ड्राइव द वर्ल्ड इनटू द 3 मैक्रो region and provided a detailed account of the northern temperate region। नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन के बारे में काफी उन्होंने व्याख्या किया। कौन की है? पोम्पोनियस मेला। डार्क एज द पीरियड ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पर सारा साइंटिफिक नॉलेज गया, मेटोलॉजी गया, इसको डार्क एज कहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 500 years फ्रॉम 200 AD to 700 AD द टॉलमी फॉलोइंग द टॉलमी डेथ, जैसे टॉलमी का मृत्यु होगा, ज्योग्राफी विटनेस अ डिक्लाइन इट्स डेवलपमेंट। ज्योग्राफी में कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। इट वाज द टाइम ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज ड्यूरिंग दिस फेज, ड्यूरिंग दिस पीरियड रिलीजन हैज डोमिनेटेड द माइंड ऑफ द पीपल। अब इस समय क्या हो गया? रिलीजन डोमिनेट कर गया सबके दिमाग में। दे वर नॉट अलाउड टू रेज द साइंटिफिक क्वेश्चन बाय द चर्च। चर्च के अगेंस्ट में गए तो चले गए सीधे ऊपर। कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड which has been developed in the Greek and the Roman times were received to confine to teaching of the church, the earth became a flat disc with the Jerusalem at its center। अब जेरूशलम जहाँ पर जीसस इम्पोर्टेंट क्रूसियल वहाँ पर क्रूसीफाई भी उनको किया गया था। अभी जेरूशलम का वार भी हो रहा है। ज्यूस लोग उन्होंने जीसस क्राइस्ट को फांसी दे दिया था। उनका मानना था जेरूशलम सेंटर में है। अब जो भी अपने अपने टाइम के थे वो अपने ही प्लेस को बोलते थे कि ये सेंटर में है। जैसे इंडियन ज्योग्राफर मानते उज्जैन सेंटर में है पूरे वर्ल्ड के, इसी तरीके से सब लोग का ऐसा ही मानना था। अर्थ बिकम एफेलेटिक्स, तो ये चीज हो गया। और इन्हीं का फायदा उठाते हुए यहाँ से हमारे अरब ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। The fall of the Roman Empire and the decline of the scientific learning in the European region saw the emergence of the interest of the Arabs in the geographical during the medieval period। medieval period के अंदर में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है ज्योग्राफिकल फील्ड में। The Arabic Empire stretched over several acres from the Atlantic to the border of the China। The act of holding on the such a extensive political culture to the border of the China, the act of holding on such extensive political culture empire had in itself become a major stimulus to the rise of interest in the geographical learning। इनका काफी ज्यादा अच्छा बीच में इन लोगों ने मौका उठाया, ज्ञान को अर्जित किया। The main factor that contribute to the growth and the development of the geographical knowledge in the Arab world include the exclusive nature of the Arab Islamic Brotherhood pilgrimage। जहाँ जाते थे घूमते थे वहाँ का डिस्क्रिप्शन ले लेते थे। ट्रेड करना चालू किया। इंडिया में तो ट्रेड पहले ट्रेड ही करने आते थे, फिर बाद में अटैक करने आ गए। पिकॉक थ्रोन ये सब कहाँ कहाँ लेके चले गए थे लोगों की। कोहिनूर कॉमर्स एंड द मेरीन एडवेंचर्स बाय द अरब्स। और मॉनसून जिनको मौसम कहा जाता है, अब ये भी अरब द्वारा ही बोला गया था। इंडिया की तरफ आ रहे थे सडन, देखे कि कैसे कैसे क्लाइमेट में वेरिएशन हो रहा है, उसको मौसम कह दिए लोग। तो अब हम लोग जो है अरब्स नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। यहाँ तक हम लोग का जो है ग्रीक रोमन ज्योग्राफर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। चलिए, बहुत अच्छा।